Hello guys, this is your mentor Prakash Singh Chauhan and I welcome you guys into the Chauhan's Academy, and today we are going to discuss unit 3 of your first flight book, and this unit will comprise, carry two different stories. First is his first flight, second is Black Aeroplane. And guys, in these two stories we'll discuss about how people should show their bravery and how people should overcome with their fear. These two stories will show you about bravery and cowardice nature, and both are relative terms. Why I'm saying both bravery and cowardice nature are the relative terms because they are interrelated. At certain point you show your cowardice nature. Cowardice means dar lagna, darpok hona, and at certain point you show your brave nature. So these are relative terms, and along with this we'll discuss about how one should not lose his or her hope while in danger, like young seagull. फर्स्ट स्टोरी में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीगल के बारे में. एंड वन शुड keep motivated, keep himself or herself motivated while performing any task by learning from others. So guys, let's begin the first story. It's his first flight. It's about young seagull and his family, written by Liam O'Flaherty. Now, who is Liam O'Flaherty? Who is the writer? You must be, thinking about to know about this writer. Liam O'Flaherty was a very famous novelist, and he belonged to Ireland. वो एक आयरलैंड के बशिंदे थे, रहने वाले थे, और ये एक नॉवलिस्ट हैं, नॉवलिस्ट और वी कैन से एसेइस्ट और प्रोज राइटर. एंड ही वाज वेरी पॉपुलर थ्रू हिज राइटिंग्स इन द अर्ली 20th सेंचुरी. 20वीं शताब्दी के शुरुआत में, लाइक 1920 और 1930s के टाइम पे ये पॉपुलर होना शुरू हुए थे. एंड यू मस्ट बी थिंकिंग अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ हिज राइटिंग्स. what were the main characters or important characters that comes into his writings. His writings includes common people's nature and experience, like cowardice nature and bravery. These are the common things, and these are the things which टेक्स पार्ट इन एवरीबडीज लाइफ. हर किसी की लाइफ में ये होता है कोअरिसनेस. कहीं ना कहीं एट सर्टेन पॉइंट हमें डर लगता है, एंड एट सर्टेन पॉइंट वी शो आवर ब्रेवनेस. सो दीज आर द मेन कैरेक्टर्स ऑफ हिज राइटिंग. हिज मीन्स Liam O'Flaherty. So guys, let's start the first story of unit 3, his first flight. गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँ कि इन दिस स्टोरी फर्स्ट पार्ट, हिज फर्स्ट फ्लाइट, विल बी टॉकिंग अबाउट a young seagull. Young seagull is the central character of this story. Central character मतलब around whom or around which this story revolves, जिसके आसपास स्टोरी हमेशा चलता रहता है, उसको सेंट्रल कैरेक्टर बोलते हैं. तो इसमें एक यंग सीगल है. मतलब सीगल इज अ काइंड ऑफ बर्ड दैट resides or that lives nearby to water bodies, especially near the seaside. समंदर के किनारे रहते हैं. वाई दे reside near the seaside? Because seagulls want fresh food, and they can get these only near sea. So they reside near seaside, and that's why they are called seagull. And guys, there are basically 6 characters in this story. Young seagull, he's the youngest kid of his family, and his parents, mother, father, and he has 2 brothers, elder brothers, and 1 sister. मतलब टोटल इसमें 6 कैरेक्टर्स हैं. मदर, फादर, उसके 4 बच्चे. 4 बच्चों में 2 बेटा है बड़ा, एक बेटी है, मतलब सीगल की, और एक छोटा सीगल है, यंग सीगल, एक बर्ड जो सबसे छोटा है. एंड he will be fighting to conquer his fear. वो अपने डर पे जीत हासिल करने के लिए बहुत फाइट करता है इसमें. he was not able to fly. उसे फ्लाई करने से डर लगता था. Everybody was flying to catch their prey, to get their feast or meal, but he was not able to fly. Even now सब लोग उड़ चुके थे, लेकिन वो उड़ना नहीं जानता था. उसके सारे भाई बहन उड़ना सीख चुके थे, वो अभी तक नहीं कर रहा था. और यही हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं कि हाउ ही विल कॉन्कर हिज फियर ऑफ फ्लाइंग. यही हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं. सो लेट्स बिगिन. The young seagull was alone on his ledge.
his two brothers and his sister, मतलब तीन, दो भाई और एक sister. His two brothers and his sister had already flown away the day before. Now, when we were talking about this story, when this incident happened, तब की बात बता रहे हैं हम लोग जब ये हुआ एक्चुअली में, कि there is a young seagull, एक young bird है, seagull है, और and he is standing alone on his ledge. ये लोग एक माउंटेन पे रहते थे, क्लिफ पे रहते थे, छोटे से पहाड़ पे जो कि सी साइड पे था. एंड यंग सीगल वाज ऑल अलोन बिकॉज नोबडी केयर अबाउट हिम. ही वाज वेरी लेजी, ही वाज वेरी कोवर्डिस, डरपोक था, लेजी था. ही वाज नॉट एबल टू फाइट फॉर हिज ओन फूड एंड ही वाज नॉट एबल टू फ्लाई. सो वो अकेले था एंड ही वाज स्टैंडिंग ऑन हिज लेज. वो अपने लेज पे था. लेज इज अ काइंड ऑफ एक ऐसा पोर्शन होता है क्लिफ पे, माउंटेन पे, जो बाहर की तरफ निकला रहता है. जैसे लेज का मतलब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नैरो हॉरिजेंटल. हॉरिजेंटल मतलब फ्लैट. हॉरिजेंटल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल. जैसे आप लोगों ने घर में देखा होगा, लेज का मतलब समझने के लिए ऐसे कर सकते हैं. आप लोगों ने घर में देखा होगा कि दे यूज टू बी अ काइंड ऑफ शेल्फ, glass shelf made on the wall near to the TV in order to put the setup box. टीवी का जो सेटअप बॉक्स होता है उसको रखने के लिए हमारे घरों में टीवी के बगल में एक सेल्फ बना रहता है ग्लास का, जो बाहर निकला रहता है दीवार से. उस पर हम लोग सेटअप बॉक्स रखते हैं. तो उसी तरह से क्लिफ पे, माउंटेन पहाड़ पे एक लेज निकला हुआ था जिसपे वो अकेला खड़ा था. सीगल, यंग सीगल. और उसके दोनों भाई बहन, उसके जो दोनों भाई थे बड़े वाले, और उसकी जो एक सिस्टर थी, दे हैड ऑलरेडी फ्लोन. वो लोग पहले ही उड़ना सीख चुके थे. द डे बिफोर मतलब जिस दिन की बात बता रहे हैं उसके एक दिन पहले ही उन लोगों ने उड़ना सीख लिया था. एंड दे वर कैचिंग देयर ओन प्रे, देयर ओन गेटिंग देयर ओन फूड बाय देमसेल्व्स. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, brink मतलब edge, किनारा, ledge, and attempted to flap his wings, he became afraid. And now somehow the young seagull, जो कि उड़ना नहीं जानता था, सबसे छोटा था घर में, somehow he arranged, he managed some courage. वो थोड़ा सा हिम्मत अपने अंदर जुटाता है. and he run forward, वो दौड़ता आगे की तरफ. और लेज जो वो निकला हुआ हिस्सा होता है माउंटेन पे जहाँ वो हमेशा खड़ा रहता है, वहाँ तक वो दौड़ के जाता है उसके किनारे तक. और वो अपने पंख को हिलाने की कोशिश करता है, बट ही स्टॉप्ड देयर. वो वहाँ पे रुक जाता है. वो आगे नहीं कूद नहीं पाता वहाँ से, ठीक है, वहाँ से जंप नहीं कर पाता है. हमेशा ऐसे ही ट्राई करता है उड़ने की, दौड़ता है, फिर रुक जाता है. एंड फ्लैपिंग हिज, फ्लैप मतलब अपने पंख को हिलाना, लेकिन वो करता नहीं है, उड़ नहीं पाता है. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. Now, why the young seagull was afraid to fly down the sea, उस माउंटेन क्लिफ से वो क्यों नहीं उड़ पाता था, डरता क्यों था? बिकॉज द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, वो जो सी था, समंदर था नीचे, वो बहुत ही बड़ा फैला हुआ था. और वो मतलब नीचे साइड में. एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, इतना नीचे था वो माउंटेन से, लाइक माइल्स डाउन. माइल्स मतलब 1 माइल इक्वल्स टू आई थिंक 1.4 किलोमीटर्स. तो बहुत किलोमीटर्स, कई किलोमीटर्स नीचे था उस माउंटेन से, इसलिए उसे डर लगता था. He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. Now, he always thought that his wings will never support him. He was dependent on his wings, thinking that maybe if I try to fly, my wings will never support me, it will leave me alone and I will fall down. But he was not knowing that his wings will, listen to his mind, and his wings are under his custody. But he believed that his wings are different part of his body. I mean, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ. वो अपने विंग्स पे भरोसा नहीं करता था, अपने पंख पे भरोसा नहीं करता था. उसे लगता था कि जब मैं उड़ने की कोशिश करूंगा तो मेरे विंग्स जो है मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, या कमज़ोर है बहुत, या हो सकता है मैं उड़ने की कोशिश करूँ भी लेकिन वो काम नहीं करें, ऐसा उसे लगता था. और उसके बाद जब वो नहीं उड़ पाता था, ऐसे ही सोच सोच के रहता था वो डर के, और वो रात में फिर जाके अपने लेज के पास सो जाता था और सो गया. इवन वेन each of his brothers and his little sister, जब उसके जो ब्रदर्स थे दोनों और उसकी जो छोटी बहन थी, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. यहाँ पे ये कहने का सेंस है कि उसके जो दोनों भाई थे और छोटी बहन थी एक, देयर विंग्स मतलब यंग सीगल के जो दोनों भाई,
2 brothers and 1 little sister. छोटी बहन जो थी उन छोटी बहन कहने का सेंस ये नहीं है कि सीगल से छोटी, मतलब लिटिल सिस्टर, छोटी कहने का सेंस ये है, ठीक है, लेकिन यंग सीगल से बड़ी थी वो. तो उसके जो दोनों भाई थे और सिस्टर जो थी, whose wings were far shorter than his own, उन तीनों के पंख जो थे यंग सीगल से छोटे थे. एंड दे रैन टू द ब्रिंक, फ्लैप दियर विंग्स एंड फ्लू अवे. वो लोग ब्रिंक पे, ब्रिंक मतलब एज होता है माउंटेन का, वहाँ तक जाते थे दौड़कर. फ्लैप मतलब पंख हिलाना, हिलाते थे और उड़ जाते थे. ही फेल टू मस्टर अप करेज. ही फेल टू मस्टर अप मतलब वो मस्टर मतलब होता है गैदर. वो उस करेज को गैदर नहीं कर पाता था जो उसके भाई बहन कर लेते थे. टू टेक दैट प्लंज विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट. लेकिन वो उस करेज को गैदर नहीं कर पाता था जो जिससे वो होपलेस हो जाता था, डेस्परेट हो जाता था. हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड. His father and mother had come around, calling to him shrilly. Shrilly मतलब बहुत जोर से चिल्ला करके बोलना. उसके पास आते थे आसपास में और चिल्ला कर बोलते थे. upbraiding him मतलब स्कॉल्डिंग, भला बुरा कहना. जब मम्मी पापा गलती हो जाती है हमसे या कुछ हम नहीं करते हैं तो कैसे हम पे चिल्लाते हैं, डांटते हैं हमें. और वो डांटना एक्चुअली में होता है हमें मोटिवेट करने के लिए. तो वैसे ही उसको स्कॉल्ड करते हैं. threatening to let him starve on his ledge unless he flew away, but for the life of him he could not move. His father and mother every day, every time, upbraid him. उसको उस पे चिल्लाते थे, डांटते थे, उसे भला बुरा कहते थे. Even they threatened him that he will not be getting any food if he doesn't fly. अगर वो उड़ता नहीं है तो उसे कोई फूड नहीं मिलेगा. And his parents threatened him that he will be starving and he will not be getting any food. They will let him to starve. उसे भूखे छोड़ देंगे ऐसे ही. ऐसे उसको धमकियाँ भी देते थे. But he never gathered to fly. But वो कभी courage नहीं गैदर कर पाता था फ्लाई करने के लिए. And but for the life of him he could not move. यहाँ इस लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट सेंस है, यहाँ पे मीनिंग है. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ उसको. टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे. जब तक वो उड़ना नहीं कोशिश करता था तब तक उसको धमकाते थे, डांटते थे और उसके फादर. बट लास्ट लाइन में लिखा हुआ है बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव. इसका सेंस है ही हैड नो एनर्जी बिकॉज ही हैड नॉट ईटन फूड प्रॉपरली फॉर लास्ट 24 आवर्स. और उसके अंदर एनर्जी नहीं थी. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, उसके लाइफ में बहुत मतलब तकलीफ़ें थी. उसको फूड नहीं मिलता था. वो बहुत कमज़ोर हो गया था. वो अपने पेरेंट्स की बातों को सुनने के बाद, डांट सुनने के बाद भी वो मूव नहीं कर पाता था. वो थका हुआ था, कमज़ोर था, डरा हुआ था. खाना उसको प्रॉपरली नहीं कोई दे रहा था, सपोर्ट नहीं कर रहा था, इसलिए ही कुड नॉट मूव. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. That was 24 hours ago. 24 घंटे पहले की बात है. Since then nobody had come near him. ये अभी तक जो भी हम लोग डिस्कस किए हैं, this was the incident that happened 24 hours ago. 24 घंटे पहले की बात है. और तब से लेके अभी तक कोई भी यंग सीगल के पास नहीं आया है in order to help him, in order to talk to him, या sympathy देने के लिए कोई उसके पास नहीं आया. Young seagull is all alone sitting on his ledge. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. The last day, पिछले दिन उसने देखा his parents, young seagull ने अपने पेरेंट्स को देखा that his parents were training the अदर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. उसके जो बाकी ब्रदर्स थे दोनों और उसकी जो एक सिस्टर थी, उन तीनों को ट्रेनिंग दे रहे थे. हाउ टू स्किम, कैसे डाइव करते हैं, कैसे स्किम करते हैं, हवा को काट कर आगे बढ़ते हैं उड़ने में. एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश. ये सारी चीज़ें उसको सिखा रहे थे अपने बाकी बच्चों को पेरेंट्स. और यंग सीगल अकेला था, वो चुपचाप से ये देख रहा था. Because he was not able to try, he was not even trying to get a lesson, get a training. He was all alone and he was sitting. He was not saying that okay, I'll try. कम से कम ये भी नहीं कह रहा था कि ठीक है मैं ट्राई करूँगा. He was not ready to accept that challenge. He had in fact seen his older brother catch his first herring मतलब होता है a kind of fish. sea में जो fish मिलता है, a soft fine sea fish. तो उसने देखा कि he had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. उसने देखा कि उसका जो बड़ा वाला भाई था, जो
अभी 2 दिन पहले ही सीखा था उड़ना, उसने पहला अपना फिश कैच किया, पकड़ा और उसे वो खाना भी शुरू कर दिया वेरी ईगरली। डेवो इट मीन्स स्टार्टेड ईटिंग वेरी ईगरली। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, रॉक पे बैठ करके खा रहा था उसका बड़ा भाई। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, और उसके पेरेंट्स जो थे, बड़े वाले भाई ने जब फिश को पकड़ा तो उसके पेरेंट्स ने चारों तरफ से उसे घेर लिया, एंड दे वाज सेलिब्रेटिंग लाइक, और उसके पेरेंट्स सेलिब्रेट कर रहे थे। यस, ऐसे लग रहा था जैसे यस माय सन यू हैव डन इट, ब्रावो, इस तरह से कुछ कहना चाह रहे थे उसको, ठीक है। इस तरह से वो लोग सेलिब्रेट करते। कैकल, प्राउड कैकल, कैकल मतलब इट्स काइंड ऑफ साउंड वर्ड, साउंड निकाल रहे थे ऐसे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू, बड़े से चट्टान पे पूरी फैमिली वहाँ घूम रही थी आपस में। मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टाउंटिंग हिम विद his cowardice, and all the members of the family, means his parents, mother, father, his 2 brothers and sister, they were moving opposite cliff and they were taunting मतलब किसी पे making fun of somebody को बोलते हैं taunt करना, किसी उसका फन कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे यंग सीगल का अपोजिट वाले क्लिफ पे खड़े होकर के। and they were making taunt on him that you are a cowardice सीगल, उसका मजाक उड़ा रहे, तुम डरपोक हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, उसका मजाक उड़ा रहे थे। बट एक्चुअली दे वर नॉट टाउंटिंग, दे वर ट्राइंग टू लेट हिम नो व्हाट ही शुड डू, ये ऐसा कोशिश कर रहे थे वो लोग। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पैरा। गाइज सबसे पहले मैं आप लोगों को इस पिक्चर में दिखा देता हूँ कि लेज किसको बोलते हैं। एज यू गाइज कैन सी दिस पोर्शन, ये एक माउंटेन है और इस पे ये जो कोना निकला, एक कॉर्नर निकला हुआ है जो जिसके नीचे बिल्कुल खाली है, पोर्शन खाली आपको दिख रहा होगा। और ये जो पोर्शन है निकला हुआ कॉर्नर जो एयर में है, बिल्कुल एयर में है, और ये माउंटेन। तो ये जो कॉर्नर निकला हुआ है जिसके नीचे बिल्कुल स्पेस खाली है, इसको लेज बोलते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये चीज़, कॉर्नर्स निकले हुए हैं, इसको लेज कहते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट पैरा। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब सूर्य बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ चढ़ रहा था, दोपहर होने जा रही थी, बहुत गर्मी थी। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, ब्लेजिंग मीन्स मेकिंग आई मीन फुल हीट ऑन हिज लेज, उसके लेज पे जिस पर यंग सीगल खड़ा रहता था, हमेशा बैठा रहता था, आराम करता था, उससे बहुत तेज़ धूप आ रही थी। दैट फेस्ड द साउथ, मतलब उसका लेज पे जहाँ पे वो था वो साउथ डायरेक्शन में उसका फेस था और उस पर बहुत तेज़ धूप पड़ रही थी। ही फेल्ट the heat because he had not eaten since the previous nightfall. Like guys, जब भूख लगी होती है उस टाइम पे थोड़ी सी भी धूप लगती है, या उस टाइम पे थोड़ा सा भी अगर हमें काम करना पड़ता है, बहुत ज़ोर से भूख लगी होती है, आप 24 घंटे से नहीं खाए हो, बहुत देर से नहीं खाए हो, तो आपको थोड़ी सी भी तकलीफ़ होती है, धूप में निकलना होता है या कुछ भी करना होता है, तो आपको वो आपसे आप उसे नहीं झेल सकते हैं, आप उसे नहीं बियर कर सकते। लेकिन जब आप भूखे नहीं होते हैं, यू आर ईटिंग सफिशिएंटली एंड वट एवर द हीट आउटसाइड इज यू कैन बेयर। तो उसको बहुत धूप लग रही थी क्योंकि वो खाया नहीं था, बहुत दिन से भूखा था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, वो अपने लेज पे थोड़ा सा बाहर निकलता है धीरे धीरे जब धूप होती है तब। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स, under his wing he closed one eye then the other, वो अपने लेज पे थोड़ा किनारे निकलता है, धूप पड़ रही होती है, वो अपना एक लेग ऊपर उठा करके अपने मतलब बॉडी में छिपा कर रखता है, विंग में, अपने पंख में, और एक पैर पे खड़ा होता है क्योंकि गर्मी बहुत हो रही होती है इसलिए, और वो अपनी एक आंख बंद करता है पहले एंड देन द अदर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep. He closed one eye at first, then the second eye, and next eye. I mean, he closed both the eyes, and he was standing on one leg, and he was trying to, pretend. Pretend means to show off. He was trying to show off that he was, feeling sleepy. उसको नींद आ रही है ऐसा दिखा रहा था, but no, नहीं, वो actually में थका हुआ था और वो hungry था, right? He was not actually, feeling sleepy. Still, they took no notice of him. He was trying to show the parents and brothers and sister that I'm not feeling well and I'm feeling asleep. मैं मुझे बहुत थकावट सी हो रही है, मैं बेहोश हो जाऊंगा. But he was actually not. He was just pretending. दिखावा कर रहा था. Still they took. They means parents and brother sister. They took no notice of him. कोई इस पे ध्यान नहीं देता है. सब लोग समझ रहे थे ये नौटंकी कर रहा है, जैसे you guys know well.
आप लोग भी करते होंगे, पेरेंट्स के सामने दिखावा कि मुझे बहुत दिक्कत है, मैं मम्मी स्कूल नहीं जाऊंगा, मम्मी स्कूल नहीं जाऊंगी, ऐसे तभी ठीक नहीं है, मम्मी ज़ोर से डांट के भगाती है स्कूल की, जाओ तुम्हारा डेली का एक्टिंग है। और फिर जैसे ही स्कूल मजबूरी में जाना पड़ता है कि घर में सर दर्द बता रहे थे, और स्कूल जब भेज दिया जाता है तो फिर आप स्कूल में जाके अपने दोस्तों से खूब इंजॉय करते हैं, किसी का सर फोड़ते हैं, किसी का कुछ करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, मतलब वहाँ पे एनर्जी आ जाती है। बट घर में दिखावा करते हैं कि एनर्जी नहीं है, बट फिर भी मम्मी भेज देती है। तो वो भी वैसे ही प्रिटेंड कर रहा था, दिखावा कर रहा था, बट नो बडी टुक नोटिस ऑफ हिम, किसी ने ध्यान नहीं दिया, सबको पता था कि एक्टिंग कर रहा है। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing with their heads, sunk into their necks. उसने देखा कि अब उसके दोनों भाई और उसकी जो सिस्टर थी वो लोग प्लेटू पे, मतलब एक चट्टान पे खड़े थे, एंड दे वर डोजिंग विद देयर हेड्स, वो लोग अपने हेड्स को अपने नेक्स में, मतलब ये जो बड़े बड़े बर्ड्स होते हैं, खासकर यंग सीगल, ये लोग जब आराम कर रहे होते हैं ना, रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं, पोजीशन में, तो वो लोग अपना सर को जो अपने पंखों में घुसा लेते हैं और आराम करते हैं। तो वो उसके बाकी भाई बहन वैसे ही कर रहे थे। हिज फादर वॉज प्रीनिंग दी फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक। उसके फादर, यंग सीगल ने देखा कि उसके फादर जो है अपने मतलब कहाँ गया, हिज फादर वॉज ट्रेनिंग दी फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक। उसके फादर जो अपने पंखों को साफ कर रहे थे, मतलब अपने पीठ वाले पंख को अपनी चोंच से साफ कर रहे थे, बीक से, BEAK, बीक। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. This is very important line, I believe, according to me, and I believe according to you also. Whenever we talk about mothers, these things are very important. Now, nobody was taking notice of young seagull. Nobody was caring about what he's facing, how he's experiencing, how he's starving. But there was one guy in his family who was taking notice of him, and it was young seagull's mother. Only his mother was looking at him by the side window of his eye. तिरछी नज़र से उसकी मम्मी उस पर ध्यान रखी हुई थी, बिकॉज मदर्स आर मदर्स, वी ऑल नो, nobody will care but mothers always care. She was standing on a little high hump on the plateau. वो एक छोटे से hump मतलब होता है जैसे एक छोटा सा उभार होना, ऊपर की तरफ उठा हुआ होना जिसको बोलते हैं। तो उसकी मदर जो थी एक छोटे से हम्प पे खड़ी थी, प्लेट्यू पे, चट्टान पे, और वो उसको साइड विंडो से तिरछी नज़र से देख रही थी, सारा नज़र रखी हुई थी कि अभी कैसा बिहेव कर रहा है, वो थका हुआ है, उसे भूख लगी होगी, इस तरह से, ठीक है। Her white breast thrust forward. और इतना देखने के बाद उसकी मदर की सांसें फूलने लगी। मतलब कैसे मतलब होता है कि मम्मी परेशान हो जाती है, उसकी मम्मी, यंग सीगल की जो मम्मा थी, मदर थी, वो बिल्कुल ज़ोर से सांस लेती है कि मेरा बच्चा भूखा है, इस तरह से सोचकर। Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped its side of her beak on the rock. Now and then she was tearing, मतलब टीयर को टोर, V2 लिखा हुआ है, मतलब तोड़ रही थी, चीर रही थी, एक फिश का टुकड़ा ली हुई थी, उसको फाड़ रही थी, अपने बीक से तोड़ रही थी, और वो अपने फीट के पास दबा कर रखी थी उसको, और वो अपने बीक को, मतलब अपने चोंच को बार बार खाने से पहले, वो खा नहीं रही थी, बस तोड़ तोड़ के दिखा रही थी, यंग सीगल को दिखावा कर रही थी, और बार बार अपनी चोंच को पत्थर पे घिस रही थी, मतलब उसको